One of the best planned cities in India is Jaipur, which is Rajasthan's capital, and it's an enthralling historical city and the gateway to India's most flamboyant state. It's commonly known as the Pink City because of its colorful buildings and chaotic streets which ebb and flow with a mix of old and new. There are buses dodging camels on the go, leisurely cycle rickshaws frustrating swarms of motorbikes, and auto rickshaws just about everywhere. In the midst of this mayhem, the splendors of Jaipur's majestic past evoke a different pace and another world. At the city's heart is Jantar Mantar, the royal observatory which maintains a heavenly aspect, and the honeycomb Hawa Mahal which gazes sleepily on the bazaar below. The city, which once had been the capital of the royal Maharajas, still continues to hold till today the former royal family at City Palace. And just out of sight in the arid hill country surrounding the city is the fairy tale grandeur of Amber Fort. However, these are not the only gems in Jaipur's crowns. It holds an added diamond in this arid desert. And the diamond is none other than the Indian Railways Throws Academy at KP Singh Railway Stadium, which is churning out Kohinoors from its stable. During the last Olympic Games held at London in 2012, a team from the Railway Ministry, including a member staff and the Secretary of Sports, went to the Olympics to understand the various aspects of the Games. While comparing the performance of the Indian athletes at the Olympics, it was felt that the Indian athletes really need structured training for achieving better results. It was then that the Ministry of Railways decided to open 3 sports academies. Let us please hear more from Shri Anil Singhal, General Manager, North Western Railway. Railway Board had announced 3 sports academies. That is, one was for wrestling, which is in New Delhi. Another was for archery, that was in Calcutta. And the third one, that was for throw, that is given to Northwest Railway. So we have developed this academy in our KP Stadium, which is about 15,000 square meter in area. This stadium has been renovated, the grass has been relaid, the track has been upgraded to international standards, and we have also provided a gym with modern facilities for the purpose of better training facilities to the employees. Throws Academy was inaugurated on the 10th of April 2014, and the first batch of Indian Railway athletes underwent training in October of 2014. इन एकेडमी का उद्देश्य उन लोगों को ट्रेनिंग देना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिनमें अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। इंडियन रेलवे थ्रो एकेडमी को जयपुर में NWR के अधीन खोलने का मुख्य कारण यहाँ के थ्रो खिलाड़ियों की अचीवमेंट्स रही हैं। अभी हाल ही में हुए नेशनल गेम्स में हमारे एकेडमी के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमें कुल 6 मेडल्स मिले हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इन्हीं गेम्स में NWR के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी श्री राजेंद्र सिंह ने 82.23 मीटर जेवलिन थ्रो कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। लास्ट कॉमनवेल्थ में डिस्कस थ्रो की गोल्ड मेडलिस्ट श्रीमती कृष्णा पूनिया भी NWR रेलवे से ही थी। यह इंडियन रेलवे थ्रो एकेडमी पिछले साल अप्रैल 2014 में खोली गई और इन 10 महीनों में केवल 2 ही कैंप लगा पाए। एक कैंप 1 महीने का और दूसरा कैंप 2 महीने का। केवल इन 2 कैंप्स की मदद से हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके 6 मेडल जीते। रेलवे बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार हमें कम से कम 6 महीने का कैंप हर साल लगाना है और अगर यह 6 महीने का कैंप कंटिन्यूटी में लगाया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने ज़्यादातर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने में सफल होंगे। इंडियन रेलवेज थ्रोज एकेडमी के अंदर 32 एथलीट्स का एकोमोडेशन अवेलेबल है। इसमें 10 वुमेन एथलीट्स और 22 मेल एथलीट्स। हमारे पास जो रूम अवेलेबल हैं वो वेल इक्विप्ड हैं। 2 बेड्स, अलमीरा और क्लोथ स्टैंड
रूम हीटर। ये हॉस्टल कम्प्लीटली वाईफाई है। इसमें जो रिक्रेशन रूम है एलईडी, और इसमें मैगजीन्स वगैरह जो एथलीट्स को अपने रिक्रिएशन के लिए। इसके साथ ही हमारे पास जो किचन है वो ऑल ही सभी हाइजीन रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करती है। Sri Virendra Punia, Dronachari awardee who is NWR player and coach, was called from the national camp in Patiala and has been handed over the responsibility of this academy. मैं वीरेंद्र पूनिया, इंडियन रेलवे थ्रो अकेडमी का मुख्य प्रशिक्षक। मैं राजकुमार, अर्जुन पुरस्कार विजेता और रेलवे में खेल अधिकारी की तैयारी करता हूँ। मैं केवी सिंह, कोच एथलेटिक्स, फिटनेस और कंडीशनिंग डील कर रहा हूँ। मेरा नाम मंगेश रत्न सिंह, मैं वेस्टर्न रेलवे से यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी में यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आई हुई हूँ। डिस्कस थ्रो जिसका वजन 2 kg होता है और हमारे देश के अंदर थ्रो, विशेष करके थ्रोज के अंदर एशियाई गेम और कॉमनवेल्थ में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ओलंपिक खेलों का सबसे पावरफुल इवेंट होता है। हैमर थ्रो महिलाओं और पुरुषों में यूज किया जाता है। जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ, जब से हैमर थ्रो यूज किया जाता था, लेकिन महिलाओं का हैमर थ्रो पिछले 2 ओलंपिक से शुरुआत की गई है। हैमर थ्रो का वेट पुरुषों के लिए 7.26 ग्राम होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 17 मीटर से लेके 1.21 मीटर तक होती है। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के अंदर हमारे पास पुरुषों के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। Myself, I am working as a physiotherapist in Central Hospital. We are providing physiotherapy to patients and sports persons also, and we have all the equipments required in physiotherapy for treating the sports injuries. एक ही मंच के ऊपर इंटरनेशनल भी और जो नए बच्चे जो रिक्रूटमेंट हुए हैं वो भी एक साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओलंपिक में मेडल जीतने में ये एक अहम भूमिका निभाएगी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने NWR में रहते हुए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता, जो कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। और उसके साथ साथ 2012 ओलंपिक में मैं 5वें स्थान पर रही, जो कि भारतीय इतिहास में पहली एथलीट है फाइनल में जगह बनाने वाली। मैं मंजू बाला, हैमर थ्रोअर, रिसेंट जो एशियन गेम हुआ था इंचियोन में उसकी सिल्वर मेडलिस्ट, और ये इंडिया का पहला मेडल था। आज तक कभी इंडिया का मेडल नहीं आया हैमर थ्रो में। मैं राजेंद्र सिंह हूँ और मैं NWR रेलवे में एज ए लिपिक कार्यरत हूँ। स्पोर्ट्स कोटे से मैं भर्ती हुआ हूँ। तो मैं पिछले 2-3 महीने से एकेडमी जब से शुरू हुई यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ से नेशनल गेम गया तो वहाँ पे मैं 82.23 जेवलिन फेंक के नेशनल रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड जीता, और साथ में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। तो एकेडमी में जो हमें फैसिलिटी मिली उसका पूरा असर कंपटीशन में मेरे को देखने को मिला। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है रेलवे की तरफ से, और ऐसे ही फ्यूचर में अगर ऐसी सुविधाएं मिलती रहेंगी तो और भी अच्छे लेवल की हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं शॉटपुट थ्रोअर हूँ DMW पटियाला से। और यहाँ पे रेलवे ने अकेडमी शुरू किया है थ्रोअर्स के लिए, जो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। क्योंकि जैसे हम अपने स्टेशंस पे करते हैं, अपने जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है वहाँ पे हमें हाफ डे ड्यूटी करना पड़ता है ये वो, और यहाँ पे गवर्नमेंट हमें प्रॉपरली प्रैक्टिस के लिए फैसिलिटी दे रही है, और रहने की, खाने की सब फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, जो आगे हमें इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई एम विकास पुनिया, डिस्कस थ्रोअर, रेलवे रिकॉर्ड होल्डर, कंटिन्यू 5 साल से इंटर रेलवे में गोल्ड मेडल माई बेस्ट अचीवमेंट रही है, और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया 2 बार। इसके अलावा अभी ओलंपिक की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ट्रेनिंग करके। मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी, और मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से हूँ, और मैं शॉर्ट पुट करता हूँ कि यहाँ पर जो कैंप लगा है, एकेडमी बनी है, बहुत अच्छी है।
इसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, सारा कुछ अच्छा है। The purpose of this academy is that we should make use of our athletes and train them for international events like Asiad, Commonwealth Games, etc. एक वर्ष के छोटे से कार्यकाल में ही हमने थ्रो एकेडमी का पूर्ण रूप से यहाँ पर काम पूरा कर लिया। हमें खुशी है कि हमने जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अपने खिलाड़ियों के लिए बनाई है वो विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। वहाँ खिलाड़ियों को खाने पीने की पूरी सुविधा है, उनके आराम और उनके मनोरंजन के पूर्ण साधन वहाँ पर मौजूद हैं। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब एशियाड या ओलंपिक के विक्ट्री स्टैंड पर हम उन लोगों को देख पाएंगे जिन्होंने ट्रेनिंग NWR की स्पोर्ट्स एकेडमी में ली है। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए क्या आप विदेश से भी कोई कोच मंगवाने का प्लानिंग कर रहे हैं? अभी जो हमारे अपने कोच हैं रेलवे के और जो NIS ट्रेन कोचेज हैं, अभी तो हम उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाहर से भी कोचेज मंगवाएंगे। What are your expectations from? I expect my people to do much better because my experience has shown that during last 2 months training they have improved their throws by as much as 6 meters. So I am very confident that this academy will leave its impression on the national games. So you are expecting a gold or not one gold? Okay. Gold in almost all the events. इस एकेडमी में सिर्फ NWR के खिलाड़ी है या ऑल ओवर इंडिया? इस एकेडमी में ये बेसिकली एकेडमी इंडियन रेलवे थ्रो एकेडमी है जो कि NWR के अंडर खोली गई है। इसमें पूरी इंडियन रेलवे के खिलाड़ी आते हैं। जो भी हमारे बेस्ट खिलाड़ी हैं और जो हम लोग जिनसे उम्मीद है कि ये ओलंपिक लेवल पे या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, उन्हीं खिलाड़ियों को सेलेक्ट करके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। During the 2014 and 2015 period, a 100-day camp was organized in 2 spells by the academy. The athletes from all over the Indian Railways attended this camp. With structured and rigorous training, the performance of all the athletes has drastically improved. Most of them have performed outstandingly well in the Open Games as well as the National Games. The Academy is also planning to impart training to the upcoming athletes of a younger age group, which is of the 12 to 18 years age band in the near future. ये एकेडमी अभी करीबन 10 महीने पहले शुरू हुई है और अभी तक हम 2 कैंप लगा चुके हैं। इन्हीं 2 कैंप को देखते हुए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले ओलंपिक्स में 2016 में जो ब्राज़ील में होने वाले हैं उसमें कम से कम हमारे 5-6 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और मुझे सभी से उम्मीद है कि सारे खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल जीतने की क्षमता है। अभी राजेंद्र सिंह ने नया जैवलिन में इंडिया रिकॉर्ड सेट किया है, नया इंडिया रिकॉर्ड। और पहली बार जैवलिन थ्रो का कोई खिलाड़ी इंडिया से वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये हमारी एकेडमी के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सभी खिलाड़ियों को उसी लेवल पर तैयार कर रहे हैं। It is a famous quote by Paul B. Bryant. It is not the will to win that matters. It is the will to prepare to win that matters. I had read in one of the Olympics that you never win silver, you actually lose gold. So our motto is that our every throw becomes a golden throw, and we should win many gold medals in international events in times to come. है बाजुओं में जिसके दम, चूमे मंजिल उसके कदम, दिखा देंगे हमारा दम, मिलके चले जब हम कदम कदम। पर्वतों को लांघ कर पहुंचेंगे मंजिल पे हम, दिखा देंगे हमारा दम, मिलके चले जब हम कदम कदम। आंधियों की क्या मजाल रोके जो हमारी चाल, दिखा देंगे हमारा दम, मिलके चले जब हम कदम कदम।